اگر آپ کو کسی ماضی میں کسی انسان کی، کسی ایکس پارٹنر کی یا ہسبینڈ کی یا کسی بھی انسان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، بہت شدت سے اچانک سے، اور اس کے علاوہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے عرصے سے آپ بہت لو فیل کر رہے ہیں، ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ہر وقت تھکاوٹ ہے، جیسے کوئی بری نظر ہو، جیسے آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے اپنے آپ پہ، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے ایسے خیال آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، جو چیزیں آپ خود نہیں سوچتے، تو اٹ مینس کہ آپ کے اوپر کسی اور انسان کی انرجی کا اثر ہے، یا کوئی اور انسان آپ کی انرجی کو پل کر رہا ہے. سو یہ بیسکلی تمام اسپریچول اٹیکس کی سمٹمس ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور سمٹمس ہیں جس میں باڈی کے اوپر بلڈ کا لگنا، کٹس کا لگنا، برے خوابوں کا آنا، اور نیند کا نہ آنا، یہ تمام چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. سو ان تمام چیزوں کے لیے کیا ایسا کیا جائے جس سے آپ کی صحت فوری طور پہ بہتر ہو سکے، جس میں پیسے بھی کم لگیں، اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو اس کے لیے یہ کچھ اسپریچول ٹپس ہیں. پہلی چیز سب سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے ایگ کلینس. آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی آپ کو کبھی آپ کو ہیوی فیل ہو رہا ہے، آپ کا رونے کا دل کر رہا ہے، آپ کو اداسی ہو رہی ہے ایک دم سے، آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک ایگ لینا ہے. اس ایگ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور آپ نے اس پہ سوچنا ہے کہ جو بھی آپ کا مطلب پرابلم ہے، لائک فار ایگزامپل اگر کسی کو اس کے کمر میں درد ہو رہا ہے، یا اس کے سر میں بہت درد ہے، یا آنکھوں میں، یا کوئی چیز اس کو ڈپریشن کاز کر رہی ہے، تو آپ نے سوچنا ہے کہ وہ تمام چیزیں یا وہ تمام بیماری اس ایگ کے اندر آپ کی باڈی سے نکل کے اس میں ایبزورب ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ اس کو اپنے پورے جسم پہ رب کر سکتے ہیں. 7 ٹائمز آپ اس کو اپنے سر پہ سے گھما سکتے ہیں. یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں، ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے، لیکن بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایز اے آبجیکٹ لینا ہے جو آپ کی نیگیٹو انرجی کو ایبزورب کرے. جب آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد ایک شیشے کا گلاس لے لیں، اس میں پانی ڈال لیں، اور پھر آپ نے اس انڈے کو اس میں توڑنا ہے. جب آپ انڈے کو توڑیں گے تو توڑتے وقت آپ نے اوپر سے اس کے اندر نہیں دیکھنا ہے، یہ بیڈ لک کاز کرتا ہے. اس کے بعد آپ انڈے کو چھوڑ دیں 10 یا 15 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد جب آپ جب آپ تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ڈفرینٹ لائنز یا تو بنی ہوں گی، یا انڈا سرکل ہوا ہوگا، یا ببلز ہوں گے، یا ریڈ کلر ہوگا، اس میں ریڈ اسپاٹ ہوگا، بلیک اسپاٹ ہوگا. یہ تمام چیزیں جیسے ببلز کا بننا گوسپ کو شو کرتا ہے، ریڈ یا بلیک اسپاٹ کا شو کرنا بلیک میجک ایول آئی کو شو کرتا ہے، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں. اگر آپ ایگ کلینس کریں اور آپ پوچھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے، تو آپ میرے انسٹاگرام پہ مجھے ٹیگ کر سکتے ہیں اپنی اس میں اسٹوری میں، اینڈ دین آئی ول ہیلپ یو. اس کے بعد جب آپ نے اس انڈے کو دیکھ بھی رہے ہو نا، یا اس کی پکچر لینی ہے، تو اوپر سے نہیں دیکھنا، سائڈ سے آپ نے اس کی پکچر لینی ہے. اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں نمک ڈال دینا ہے. نمک ڈالنے سے ہم انرجی بیسکلی سیل کرتے ہیں، اور آپ نے نمک ڈالتے ہوئے یہی انٹینشن رکھنا ہے کہ جتنی بھی بیڈ انرجی ہے وہ اس میں ایبزورب، میں ادھر ہی لاک کر رہی ہوں. کچھ لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس میں ریڈ چلی ڈالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں بھیجی ہے میں اس کو واپس بھیج رہی ہوں. میں پرسنلی ایسا نہیں کرتی، کیونکہ سم ٹائمز ہمارے اپنے ہی ہمارے پیارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں غلط یا نیگیٹو انرجی سینڈ کر سکتے ہیں. نمک ڈالنے کے بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، اس کے اوپر اس کے اندر دیکھے بغیر آپ نے ٹوائلٹ میں کموڈ کا ڈھکن اٹھا کے بغیر دیکھے ہوئے آپ نے اس کو اس میں پھینک دینا ہے، جو پانی اور انڈا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈھکن بند کر کے آپ نے فلش کر دینا ہے. جب آپ یہ کریں گے آپ کو انسٹنٹلی 10 منٹس کے اندر اندر اچھا فیل ہوگا. اور آپ نے یہ بھی ٹرائی کرنا ہے، اس کو کرنے کے بعد آپ ننگے پاؤں زمین کے اوپر چلیں، کم سے کم 40 یا 44 قدم آپ نے چلنا ہے. ایگ کلینس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور یہ انسٹنٹلی بری یا بیڈ لک یا بیڈ چیزوں کو یا نیگیٹو انرجی کو، بلاکیجز کو بھی ایون ریموو کرتا ہے. اگر آپ کی لائف میں منی کی یا کسی اور چیز کی بلاکیج ہے، اس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ انڈر اٹیک ہیں یا آپ بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، تو آپ نے فوری طور پہ شاور لینا ہے. شاور لینے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے ٹھنڈا پانی ہو، جتنا ٹھنڈا پانی ہوگا اتنا اچھا ہوگا. اور جب وہ پانی جس سے آپ شاور لیں تو آپ نے امیجن کرنا ہے کہ یہ پانی عام پانی نہیں ہے، یہ پانی ڈیوائن سورس سے آ رہا ہے، گاڈ لائٹ سے آ رہا ہے. اس طرح کے آپ نے کوئی بھی ڈیوائن سورس جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں جو پیور ہے، لیکن اس کا تعلق خدا کی ذات سے یا کریٹر کی ذات سے ہونا چاہیے.
अपने उस पानी को वहाँ से इमेजिन करना है, और वो पानी आपको क्लेंज कर रहा है। जैसे अगर आपका जिस्म, आपने आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि वो सारा पानी आपके ऊपर से तमाम बोझ और सारी चीज़ों को उतार रहा है, डिज़ोल्व कर रहा है। और जब आप ये करेंगे, इससे भी बेहतर होगी आपकी तबीयत। और अगर आप ऐसा कर सकें कि सी सॉल्ट आपको कहीं से मिल जाए, सी सॉल्ट सबसे बेहतरीन है, उसको आपने पूरे जिस्म पे मलना है, बालों पे। औरतें ख़ास तौर पे बहुत जब इमोशनल हों तो बालों में अच्छी तरह नमक को लगा के छोड़ें, माथे पे लगाएं, मुंह के अंदर नमक रखें, हर जगह अपने जिस्म के ऊपर जैसे साबुन को लगाते हैं वैसे उस नमक को लगाएं। तो इससे भी जो है आपकी बैड नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी। और अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला है जिन्नात का, एंटिटी का, जादू और इस तरह की चीज़ों का, तो उसमें भी ये चीज़ आपको मदद देगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा फिर आपने उससे नहा लेना है। नहाने के बाद जब आप बाहर आएंगे आप इंस्टेंटली बेटर फील करेंगे। और आपने कपड़े जो पहनने हैं, आपने कोशिश करना है कि आप सफ़ेद रंग पहने जिन दिनों आपको ऐसा महसूस हो। अगर सफ़ेद नहीं पहन सकते तो आपने कोई भी लाइट कलर इस्तेमाल करना है। और वैसे भी अगर आप कोई सेंसिटिव इंसान है तो आप कोशिश करें कि आप काले रंग से दूर रहें, और आप वाइट कलर जितना ज़्यादा हो इस्तेमाल करें, नहीं तो लाइट कलर्स। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिनको रात को सोते हुए या तो डरावने ख्वाब आते हैं, या आप ख्वाब में नींद में डर जाते हैं, या आपको नींद सही तरह से नहीं आती, या फिर आपको नींद में सोते सोते आपका जिस्म, आपको लगता है कि स्लीप पैरालिसिस हो गया, जैसे आपका जिस्म बिल्कुल साकिन है और आप हिल नहीं पा रहे, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी शीशे हैं आपने उनको ढक कर सोना है। उनके ऊपर कोई भी चादर डाल दे, कपड़ा डाल दे, लेकिन शीशे ब्लॉक होने चाहिए। इससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि शीशे बेसिकली पोर्टल होते हैं दूसरी दुनिया की मखलूक के इस दुनिया में आने के लिए। सो इवन मोबाइल के मिरर्स भी जो हैं उनको भी उल्टा करके मेरे ख्याल से सोना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है वो ये है कि अगर आपको कोई आपका एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, दैट मीन्स कि वो आपकी एनर्जी को पुल कर रहा है, वो आपके बारे में सोच रहा है। सो उसके लिए आपने इमेजिन करना है अकेले बैठ के कि आपकी और उसके बीच में एक रस्सी है जो जोड़ रही है आप दोनों को। तो आपने इमेजिन करना है कि वो रस्सी आहिस्ता आहिस्ता आप कैंची से काट रही हैं, या आपने अपने जिस्म से उखाड़ दी है, और वो रस्सी जैसी उखड़ गई है तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो गया। ये एक सिंपल तरीका है। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल से करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि अच्छा अब आंखें बंद करें, अब इस तरह, सो ऑन। सो इसको कॉर्ड कटिंग भी कहते हैं। इसके बाद जो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है बैड एनर्जी से रिमूव करने के लिए वो ये है कि आप अगर फीमेल हैं या मेल हैं तो वाइट रंग का पर्ल्स मिलते हैं, सफ़ेद असली जो मोती पर्ल होते हैं वो पहने, उसको इस्तेमाल करें। ब्रेसलेट हो, रिंग हो, गर्दन में पहन लें, ये चीज़ हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो अपने बालों को आप कट कर लें थोड़ा सा। अगर मेल हैं तो ज़्यादा कट कर लें, फीमेल हैं जितना कट कर सकती हैं कर लें। जिस्म के बाल, चेहरे के बाल, सर के बाल, क्योंकि बालों के अंदर भी इमोशनल एनर्जी होती है स्टोर। सो इनको जब हम कट करते हैं हमारी उससे पुरानी मेमोरी से निजात हमें मिल जाती है। और इसके अलावा फ़ीमेल्स को अगर किसी पार्टनर की बहुत याद आती है तो क्योंकि फ़ीमेल्स हमारी जिस्म ऐसा है कि हम किसी भी इंसान के साथ अगर हमारा फ़िज़िकल ताल्लुक़ होगा तो वो उस इंसान की एनर्जी हमारे जिस्म में स्टोर हो जाती है। तो इस चीज़ को भी रिमूव करना पड़ता है। औरत के बेसिकली इस हिस्से में और इस हिस्से में वो चीज़ स्टोर होती है, ऑरा में और बेसिकली ये अपर बॉडी में। सो उसके लिए अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं कुंडलिनी योगा की, वो आप करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म से जो आपके जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो निकल जाती है। इसके अलावा अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो आपने अपने आसपास, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप वो चीज़ लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो रुकिया बाय मिश्री समथिंग इस तरह कुछ है, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इंडियन मज़हब से, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो गायत्री मंत्रा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसको डेली सुने तो आपके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन बन जाती है। अगर आप सिख मज़हब से हैं तो आप उसके लिए वो सुन सकते हैं अरदास भाई और गुरु रामदास गुरु, ये भी आपके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन बनाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल अपने आप को समझते हैं, आप समझते हैं कि रिलीजन्स
की डिवाइड को आप उस तरह से नहीं लेते जैसे माशरा लेता है, तो आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को चूज़ करके उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है, आपने डेली बेसिस पे आपने उसको करना है, तब आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोटेक्शन होती जाएगी। नेगेटिव एनर्जी जब हमें बहुत ज़्यादा फ़ील हो या हम अचानक से बहुत ज़्यादा लो फ़ील करें, तो बेसिकली ये एंटिटी के अटैक्स भी होते हैं। एंटिटी कुछ ऐसी मखलूक़ें होती हैं जो इंसान नहीं होती, गैर इंसानी चीज़ें होती हैं, नॉन ह्यूमन, जो कि इंसान के सोल पे या उसके जिस्म पे अटैक करती हैं और उस पे फीड करती हैं। तो ये एंटिटी के अटैक्स होते हैं, समटाइम्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एंटिटी के अटैक्स होते हैं। इवन डिप्रेशन, एंग्जाइटी के 90% केसेस यही होते हैं। सो एंटिटी का अगर आपको अटैक हो, दैट मीन्स कि आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जिस्म जो है, आपने उसको कोशिश करना है कि आप डेली शॉवर लें। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आसपास आपके समंदर है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप रोज़ाना समंदर में डुबकी लगाएं, रोज़ाना उसमें नहाएं। और अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप वैसे एक ऐसे इंसान हैं जिसको हर वक्त जो है ना दिमाग उनका रिलैक्स नहीं होता, तो आप अपने पास, अपने घर के पास अगर कोई तालाब है, नदी है, उसके पास बैठा करें थोड़ी देर। वो भी नहीं कर सकते तो अपने कमरे में ऑनलाइन देखें, फाउंटेन मिलते हैं, फव्वारे कमरे में रखने वाले, टेबल वाले जो होते हैं, जिसमें से पानी ऊपर को निकल रहा होता है, ठीक है, वो आपने लेने, लेकिन उसका ध्यान रखना है पानी नीचे कहीं ना गिरता हो। वो कमरे में लगाएं। कमरे में नहीं लगा सकते, बाहर गार्डन में लगाएं और उसके पास वक्त अपना स्पेंड करें। और एक और चीज़ जो आपको हेल्प करेगी आपके स्ट्रेस वगैरह के लिए, वो ये कि डोनेशंस करें। वो डोनेशन किस सूरत में हो सकती है? मैंने पर्सनली जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि आप कोई भी चीज़ लेके दूसरों में बांटते हैं। पौधों को पानी दे देना, जानवरों को खाना खिला देना, परिंदों को खाना खिला देना, किसी इंसान के काम आ जाना, कोई भी चीज़, लेकिन उसको आपने अपना मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो पत्थरों पे बिलीव करते हैं, तो OPAL एक पत्थर है, वो मिलता है। उसको अगर आप अपने पास रखें तो आपको, ख़ास तौर पे अगर आपको किसी एक्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। बाकी अगर आपको किसी एक्स की बहुत याद आ रही है, तो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़े, उस इंसान से जितनी एसोसिएटेड चीज़ें हैं, तस्वीरें, सब कुछ जो है उसको जला दें, ख़त्म कर दें। आज का दिन अच्छा है अगर आप इस तरह का कुछ करना चाहें तो। और उसके बाद अगर वो ऑनलाइन आपको कहीं मिलते हैं या कुछ है, तो उसको हमेशा के लिए ब्लॉक करें। और ये इरादा कर लें अपने साथ पुख्ता कि जिस इंसान का देखें हमारी ज़िंदगी में पार्ट या उसका रोल ओवर हो जाता है, दैट मीन्स वो शायद हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं था। इस बात को समझ लें, इस बात को एक्सेप्ट करें। और जितनी जल्दी आप ऐसी यादों को दूर करेंगे और उतनी जल्दी आप इससे हील कर जाएंगे। और ये कि देखें, उसका आपने नाम भी नहीं लेना अगर आपको किसी पर्सन की बहुत याद आती है तो, क्योंकि जब जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हम उसकी एनर्जी को कॉल करते हैं। दैट मीन्स कि उसको हमारे पे पावर मिलती है। तो आपने किसी का नाम भी नहीं लेना है, चाहे आपको याद आए या कुछ भी हो। और जब आपको याद आए तो आपने कॉन्शियसली उठ के आपने कोशिश करनी है कि आप और चीज़ें करें। और जेन्युइनली आपने अपने आप से किसी दिन बैठ के पूछना है कि ज़ात में ऐसा क्या मिसिंग है जो आप उस इंसान के ज़रिए आपको मिलता है। क्या वो प्यार है जो आपको अपने करीबी रिश्तों से नहीं मिला? क्या वो सुकून है जिसकी आप सारी ज़िंदगी तलाश में थे? या वो कुछ और है? अपने आप से पूछें, कोई एक चीज़ होगी। कभी भी देखें, कोई और पर्सन इतना ख़ास नहीं होता जितना हमारे लिए वो ख़ास बन जाता है। उसकी वजह हमारा अपना दिमाग होता है। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि क्या वजह है। इसके अलावा स्पिरिचुअल रेमेडी जिससे आपको फौरी तौर पे बेहतर महसूस हो, सेज मिलती है, SAGE। ये एक हर्ब है, जिसको कहते हैं, पौधा टाइप है। वो आपने ले लेनी है और उसका धुआं जो है आपने, मतलब बेसिकली अपने रूम में, अपनी जगहों पे आप करें तो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अगर सेज आपको नहीं मिलती तो कोई भी चीज़ जिससे धुआं निकलता है उसको आप अपनी सराउंडिंग में बार बार यूज़ कर सकते हैं। लोग अगरबत्ती करते हैं, जिसको स्मेल नहीं पसंद वो कोई और इसका रास्ता निकाले, लेकिन सेज सबसे अच्छी चीज़ है। सेज से बुरी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी, एंटिटीज़, अगर जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, जो भी है, वो तमाम चीज़ें बहुत एकदम से भाग जाती हैं। ये आपने करना है। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है या फीमेल है जो आप रात को जब सोकर उठते हैं सुबह में, तो आपको हर वक्त थकावट होती है,
آپ کا وجود بھاری ہوتا ہے، آپ کی ایک آپ کہیں کہ مسلسل تھکاوٹ ہے جو اتر نہیں رہی، تو آپ نے رات کو اپنے پاس کوئی بھی کلام مذہبی جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں، جو کلام اس لیے بنا ہے جو کہ انسان کو پروٹیکشن دے، آپ نے وہ پوری رات اپنے پاس لگانا ہے یوٹیوب پہ۔ ایڈیشنل سیٹنگز میں جا کے آپ لوپ ویڈیو کا بٹن دبائیں گے تو وہ ویڈیو پوری رات پلے ہوتی رہتی ہے بار بار۔ سو یہ آپ نے کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس میں چیزیں اب اتنی فزیکل نہیں ہیں، لوگ اب کسی کو فزیکلی اٹیک نہیں کرتے، یہ دور ایسا ہے جس میں اسپریچول اٹیکس کیے جاتے ہیں، کیونکہ سامنے سے کیا ہوا وار شاید ہم بہت آسانی سے پکڑ لیں، لیکن اس دور میں لوگ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ سو اس چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک شبہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اسپریچول معاملہ ہو گیا ہے، ایول والا، میجک والا، کوئی بھی چیز ہے، پوزیشن والا، ان چیزوں کو آپ جتنی جلدی چیک کروائیں گے آپ اتنی جلدی بہتری کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ٹھکانوں پہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور مزید کس پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ کل ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں پلیز، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو واقعی یوزفل لگی ہے تو اس کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو شاید ان تمام چیزوں سے گزرتے ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دس از یور کانفیڈنٹ، بریو، انٹیلیجنٹ اینڈ گفٹیڈ ہوسٹ رمشا چودھری، signing off from London. خدا حافظ.